Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. Now we will start lesson number 6, geometry. But before starting our today's topic, first we will see what we had done in this lesson. So all of you know very well what we had done in this lesson. So first we had done the recall exercise. In the recall exercise we had done the first is the point. Point means the small dot which is made by the sharp pencil. A point which is made by the sharp pencil, this is known as the point. Then next is the line segment. What is the line segment? Two point path between the 2 point. Path between the 2 point, this is known as the line segment. Simple, which things we can measure, this is known as the line segment. Which thing we can measure, this is known as the line segment. Then next is the line. Line means the line not have a beginning point and not have a ending point. Line not have a beginning point and not have a ending point. Next is the ray. Ray have a beginning point but not have a ending point. Ray have a beginning point but not have a ending point. Then after we had done the measuring line segment and draw the line segment. So when we want to draw and measuring the line segment by using the scale, so we will start from the 0. We will start from the 0. So this we had done. Then after we had done angles. So angle means, so two ray meet at a point. Two ray meet at a point, this is known as the ray. When the two ray meet at a point, there is the point, this is known as the angle. So now AO and AB and CB, that two ray meet at a point B, that B is known as the vertex, and AB and CB, this is known as the arms. This is known as the arms. So that B is known as the vertex, and this is the sign of the angle. This is the sign of the angle. And when we are writing the angles, so whichever the vertex, that always came in the middle side. That always came in the middle side. So we will write that angle in the two types, angle ABC and angle CBA. So this is the angle. Then after we had done the comparing the angles, then after we had done the types of the angles. So all of you know very well which types of the angles. So which are the types of the angle? Right angle, acute angle, straight angle, obtuse angle and zero angle. These are the 5 types of the angle. So first is the right angle. Right angle always the 90 degree. Right angle always the 90 degree. One horizontal and one vertical line. These two lines, this is known as the right angle. Then acute angle. Acute angle is always less than the right angle. Acute angle is always less than the right angle. Then next is the obtuse angle. Obtuse angle always greater than the right angle. Obtuse angle is always greater than the obtuse angle. Then zero angle. Two angle is overlapping. Two angles are the overlapping. This is known as the zero angle. And straight angle, two angle is the opposite direction. Two angle is a opposite direction. This is known as the straight angle. Then after we had done the exercise 6.3, then after we had done closed figures. Closed figure means the figure which are the closed from the all side. The closed figure is always closed from the all side. This is known as the closed figure. Then polygon. So all of you know very well which diagram is known as the polygon. The diagram which have a 3 or more than a 3 side. The diagram which have a 3 or more than 3 side, this is known as the polygon. Then next is the open figure. So which figure is known as the open figure? The figure which is not closed, the figure which is open from the any side, this is known as the open figure. Then after we had done the triangle, exercise 6.4, these also we had done. Then quadrilateral. So what is the meaning of the quadrilateral? Quadrilateral means 4 side. Quadrilateral means the 4 side. The diagram which have a 4 side, this is known as the quadrilateral. Square and rectangular both are the known as the quadrilateral.
So this we had done. Then exercise 6.5, this also we had done already. Then in last class we had done information about a circle. We had done the information about the circle. So this is the circle. This OB and OA, this is known as the radius. Radius, 2 radius means 1 diameter. 2 radius means 1 diameter. 2 radius को मिला के 1 diameter होता है. 2 radius को मिला के 1 diameters होता है. So OB, OA and XO and OY, this is the all radius. ये क्या है? सारे radius है. लेकिन XY इसको क्या बोला जाता है? डायमीटर. जो लाइन जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर से भी पास होके चला जाता है, उसको बोला जाता है डायमीटर. और जो पॉइंट सेंटर पे ही आके रुकता है, जैसे ओ बी एंड ए ओ, ये कहाँ पे आके रुक गया है? सेंटर पे, तो उसको हम बोलेंगे रेडियस. देन दिस आल्सो हैड डन द डायमीटर. अगर हमें डायमीटर निकालना है, रेडियस दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस करेंगे, क्योंकि जो हमारी रेडियस होती है उसके 2 गुना क्या होता है? डायमीटर होता है. सो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. अगर हमें डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड करेंगे. देन सर्कमफरेंस. So that outside of the line of circle is known as the circumference. The chord of the circle. Chord of the circle means सर्कल पे कोई भी लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही, कहीं पे भी ड्रॉ करते. जैसे यहाँ पे 1A पॉइंट लिया है, A पॉइंट से हमने यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की, तो इसको सारे जो लाइन्स है उसको क्या बोला जाएगा? कोड. एंड लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ा कोड सर्कल का क्या होता है? डायमीटर. क्या होता है? डायमीटर. देन आफ्टर वी हैड डन द हाउ टू ड्रॉ सर्कल बाय यूजिंग द कंपास. कंपास का यूज़ करके हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस आल्सो हैड डन. नाउ लेट्स विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.6. अभी हम एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे एक सर्कल दिया है और यहाँ पे कुछ हमें दिया है, तो वो हमें लिखना है. नेम द पार्ट्स ऑफ द सेंटर. सो दिस एक्सरसाइज 6.6, ए क्वेश्चन, बी एंड सी ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, बट डी नंबर का आपको कहाँ लिखना है? नोटबुक में लिखना है. ए बी सी ये टेक्स्ट बुक में लिखना है, बट डी नंबर आपको ये नोटबुक में लिखना है. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. नेम द पार्ट्स ऑफ सर्कल. सो सेंटर कौन सा है हमारा? पी. तो सेंटर क्या है हमारा? पी. तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी. एनी वन रेडियस, कोई भी 1 रेडियस लिखना है, तो यहाँ पे रेडियस कौन से हैं? जो सेंटर से पास होंगे उसको ही रेडियस बोलेंगे. एक्स वाई रेडियस नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर से टच हो रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पे रेडियस कौन से है? क्यू पी, पी आर, अदरवाइज उसको आर पी भी बोल सकते हैं, एम पी भी है, पी एम भी. तो कौन से 3 रेडियस? एनी 1 लिखना है, लेकिन हम तीनों भी लिख देंगे. क्यू पी, आर पी एंड थर्ड वेयर इज द एम पी. तो ये 3 रेडियस है. और डायमीटर मतलब जो लाइन सेंटर से भी पास होती है, तो यहाँ क्यू आर, जो क्यू आर है, क्यू आर ये हमारा क्या है? डायमीटर है. कॉर्ड अदर दैन द डायमीटर, डायमीटर से अलावा हमें कोड लिखना है, तो एक्स वाई ये हमारा क्या है? कोड है. डायमीटर भी हमारा क्या होता है? डायमीटर भी हमारा कोड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अदर दैन द डायमीटर. डायमीटर को छोड़ को हमें लिखना है. लेकिन हमारा एम पी जो है वो कोड नहीं होगा, क्योंकि ये आधा ही दिया है. अगर ये फुल यहाँ तक होता तो ये हमारा कोड होता, लेकिन ये क्या है? आधे तक ही, तो ये हमारा कोड नहीं होगा. तो कोड कौन सा है? एक्स वाई. और क्यू आर है, यहाँ पे लिखा है कि डायमीटर का नहीं लिखना है, तो हम क्यू आर नहीं लिखेंगे. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, मेज़र द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें सर्कल की रेडियस मेजर करनी है. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे
रेडियस को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको मेज़र करेंगे। तो हम अभी मेज़र करेंगे स्केल से। तो जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 1.5। ये आपको भी मेज़र करना है आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है 1.5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कितने सेंटीमीटर का है 1। ये जो नेक्स्ट वाला है वो कितने सेंटीमीटर का है 1 है। तो रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर का। नाउ थर्ड नंबर, इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड दिस वन इज़ द 2 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है 2। फर्स्ट इज द 1.5 सेंटीमीटर, सेकेंड इज द 1 सेंटीमीटर एंड थर्ड नंबर इज द 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ द डायमीटर इन द ईच सर्कल एंड मेजर इट। हमें डायमीटर निकालना है और हमें यहाँ पे मेज़र भी करना है और ड्रॉ भी करना है। तो हम पहले ड्रॉ कर देंगे। डायमीटर मतलब क्या होता है, जो सेंटर से भी पास होती है, जो सेंटर से भी पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तीनों को भी, तीनों ड्रॉ करती है। अभी हम डायमीटर को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे लिख दूँगी डायमीटर इक्वल टू, कितना है हम मेज़र करेंगे यहाँ पे सो फर्स्ट नंबर इज द 2 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमारे डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है तो हमारा रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर का। नाउ नेक्स्ट इज द 2.5 सेंटीमीटर का है। डायमीटर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर का है। एंड लास्ट इज द दिस वन इज द 3 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का ये 3 सेंटीमीटर है। सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर सी। Now question number D, we will solve in our notebook. So now all of you look at here. Question number D, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हमें रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है। रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है। तो हमें पता है अगर रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। इसको हाफ भी लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर लिखेंगे और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि हमें डायमीटर को निकालना। अभी हम लिखेंगे डायमीटर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। तो 2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर का। कितना है 5 सेंटीमीटर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम है तो ये आपको होमवर्क है। रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है तो इसके तरह सेम है तो सेकंड नंबर का आपको होमवर्क है। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड और फोर्थ दोनों भी सेम है तो आपको थर्ड नंबर का सॉल्व करके दे रही हूँ, फोर्थ नंबर का आपको होमवर्क है।
यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है, 3 का हाफ कितना होता है 1.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर एंड हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना। तो रेडियस इक्वल टू क्या लिख देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अभी हमारा फॉर्मूला है रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेडियस होता है वो रेडियस डायमीटर के हाफ होता है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो हमारा डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर का, 10 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ 2 and 4 बोथ आर द होमवर्क फॉर यू। 2 and 4 दोनों भी होमवर्क है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे ये कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा, ये 1 and 1.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। आंसर तो मैंने बता दिया है, आपको अभी सॉल्व करना है इसे। नाउ लेट्स विल स्टार्ट मैथमेटिक्स ए फॉर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन स्किल। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट दिया है इसको मेज़र करना है, तो इसको हम मेज़र करेंगे। यहाँ पे अगर इसको हम मेज़र करेंगे तो वो आ रहा है 10 के बाद 2 लाइन्स आ रही है, मतलब ये कितना है 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर, 10 के बाद 2 लाइन्स आ रही है, तो ये 10.2 सेंटीमीटर है। आपकी टेक्स्ट बुक में 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी होता है, तो आपको काउंट करके एग्जैक्टली आपको ड्रॉ करना है। ये आपको होमवर्क है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। देन नाउ लुक एट हियर द सर्कल नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो सर्कल दिए हैं इसके यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है लाइक दैट। एक्सरसाइज 6.6 में जो हमने किया है, एक्सरसाइज 6.6 में एक क्वेश्चन किया है, सेम इस तरह ही लिखना है। तो ये आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है। नाउ मेज़र द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द अबाव सर्कल। तो हम यहाँ पे मेज़र करके लिख देंगे, ठीक है। हमें रेडियस और डायमीटर को मेज़र करना है, रेडियस और डायमीटर को मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे तो हमारी रेडियस आ रही है 1.5 सेंटीमीटर और हमारी डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस के सामने हम लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर 24। डायमीटर 24 दिया है तो रेडियस कितना आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है और ये 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। इसका आंसर कितना आता है 12। एंड रेडियस दिया है, हमें डायमीटर निकालना है, तो हम लिख देंगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का है। नाउ नेम ईच एंगल से विच टाइप। तो ये है 5 नंबर्स का आपको होमवर्क है। आपको यहाँ पे कौन से एंगल है वो लिखना है, यहाँ पे आपको कौन सा एंगल है वो लिखना है। सो 2nd नंबर, 5th नंबर एंड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 B, these are the homework for you. Now all of you look at here mathematics B. Mathematics B question number 1 is the MCQ. So all of you look at here, which of the these have a fixed length। किसकी फिक्स लेंथ होती है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। सो किसकी लाइन फिक्स होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन
लाइन नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट, लाइन को फिक्स पॉइंट होती है क्या? नहीं, वो बिगनिंग पॉइंट भी नहीं होता है, उसको एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है। रे को बिगनिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है हमारा उसका क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। सो हियर आंसर इज द लाइन सेगमेंट। नाउ सेकंड नंबर, इफ अ वर्टिकल्स लाइन्स मीट a vertical lines meet a horizontal line, which kinds of angle is formed? क्या बोल रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वो किसी पॉइंट पे मिलता है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वो किसी पॉइंट पे मिलता है तो वहाँ पे कौन सा एंगल होता है? ये समझ लो कि वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल हो रहा है? राइट एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ लाइन मीट एट अ पॉइंट, मीट होती है वन पॉइंट पे, उसको कौन सा एंगल होता है वहाँ पे? राइट एंगल। वहाँ पे कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म व्हेन द टू लाइन मीट एट ए पॉइंट एज शो? यहाँ पे टू लाइंस दी है, ठीक है, ये टू लाइंस यहाँ पे मीट हो गई है, तो ये पूछ रहे कि यहाँ पे कितने एंगल्स हो गए, तो कितने एंगल्स है? 1 2 3 एंड 4। कितने एंगल्स हो गए यहाँ पे? 4। जब 2 पॉइंट्स है, 2 लाइंस है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, 1 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आता है? 4। 3 नंबर का आंसर क्या आता है? डी, 4। नाउ 4th नंबर, इफ द टू रे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड गो इन अ अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन देम। क्या बोल रहे हैं कि 2 रे है, ठीक है, यहाँ से रे स्टार्ट हो रहा है और दोनों भी रे अपोजिट साइड पे जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे 2 रे है, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है? सो दिस वन इज द स्ट्रेट एंगल। ये 2 रे है, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये रे है, समझ लो ये मीटिंग पॉइंट है रे का, और ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सो विच एंगल इज हियर? स्ट्रेट एंगल। सो 4th number answer is the straight angle. 4th number answer is the straight angle. If the two ray from a point, एक पॉइंट से 2 रे स्टार्ट हो रहे हैं एंड गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, द एंगल्स बिटवीन देम इज, तो वहाँ पे कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। नाउ लुक एट हियर, हायर ऑर्डर थिंग्स। सो दीपू स्केल इज़ ब्रोकन, दीपू है उसकी स्केल क्या हो गई? ब्रोकन हो गई है एट अ 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से ब्रोकन हो गई। ही मेजर अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 सेंटीमीटर मार्क, और उसने लाइन को स्टार्ट किया मेजर करना, कहाँ से? 1 सेंटीमीटर। द अदर एंड लाइन सेगमेंट, उसकी अदर साइड लाइन सेगमेंट की कितनी है? 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर्स की है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट? तो हमें लिखना है कि वो लाइन कितने सेंटीमीटर की है। 0 से ब्रोकन हो गया है, उसने 1 से स्टार्ट किया है, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तक गई है, तो वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होंगी? 3। समझ लो कि ये स्केल है, ठीक है। अगर ये स्केल है, यहाँ से ब्रोक हो गई, यहाँ से ब्रोकन हो गए, हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया और हमने 4.5 तक काउंट किया। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट करी, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और कहाँ तक बोल रहे वो? 4.5 तक चला गया। 1 से मैंने क्या किया है? स्टार्ट किया था और 4.5 तक मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी इसकी 0 ब्रोकन हो गए, अगर हम 0 से इसको काउंट करेंगे तो वो कितने होंगी? 3.5। कितने होंगी? 3.5। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 3, तो हमारी जो लाइन होगी वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की होगी, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? वो स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से लेकर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच एंगल इज लार्जेस्ट। यहाँ पे 2 एंगल्स दिए, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एम एन ओ, एक्स वाई जेड एम एन ओ। तो दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल एक्स वाई जेड। दिस इज द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऑलवेज लेस देन द राइट एंगल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल एक्स वाई जेड, विच इज द लार्जेस्ट एंगल, एंगल एक्स वाई जेड। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट our heritage. These are the some yoga pictures. योगा पिक्चर्स दी है, पोस्ट दी है, some angles mark, यहाँ पे एंगल्स को मार्क किया है। Say the what types of angle, तो यहाँ पे कौन से टाइप से एंगल हो रहा है वो लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द भुजंगासन, भुजंगासन है तो वो यहाँ पे एंगल हो गया, तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये ग्रेटर दिख रहा है 90 से, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। देन शवासन, शवासन में कौन सा एंगल हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल हो रहा है, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट सोया है तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। एंड पद्मासन में बैठा है और यहाँ पे एंगल दिया है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, our heritages. So this is our lesson. I hope all of you nicely understood. Now look at here, question number 8, fun activity, enlarge and reduce the picture in the space provide. तो यहाँ पे जो स्पेस दी है तो यहाँ पे भी आपको इसको ड्रॉ करना है, ये पिक्चर को, और ये पिक्चर यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, दोनों जगह पे आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपको क्या है, होमवर्क है। ये जो पिक्चर्स दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे भी ड्रॉ करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। सो टुडे which are the homework from exercise 6.6, question number D is the homework, then mathematics A, B numbers homework, then mathematics A से सेकंड नंबर का होमवर्क है एंड 5 नंबर्स का होमवर्क है। सो दीज आर द होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज अवर लेसन इज अवर फिनिश। I hope all of you nicely understood our lesson. Now our lesson number 7, matrix measurement. This we will be start in our next period. Thank you and have a nice day.